entering this chapter, let me give you a very brief idea about what all we study about chemical reactions. Now, when we are studying about chemical reactions, there are two important things that we study about them. One is the extent to which the reaction is going to happen, right? Feasibility of it. पहली बात reaction होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस extent तक होगा. 1 मोल से 0.1 मोल बनेगा, 0.2 बनेगा, 0.3 बनेगा. This knowledge about extent of reaction is covered under thermodynamics. Chemical equilibrium, thermodynamics में आप इसके बारे में बात करते हो. Another important thing which we want to learn about chemical reactions is the rate of reaction. 1 मोल से let's say thermodynamics के हिसाब से decide हुआ 1 मोल से 0.1 मोल बनेगा इस reaction feasible होगा, इसका delta G less than 0 है, right? ये forward direction में जाएगा, मगर 1 मोल से 0.1 मोल नहीं बनेगा, वहाँ पर आके equilibrium हो जाएगा. ये thermodynamics को decide कर दिया. अब वो 1 मोल से 0.1 मोल 1 घंटे में बनेगा, 1 दिन में बनेगा, 1 साल में बनेगा. This is called kinetics of the reaction. Reaction कितना fast जाएगा. ये information capture होती है in the chapter called chemical kinetics. ये चीज़ हम reaction के बारे में, कि reaction की rate कितनी होती है, हम chemical kinetics के chapter में पढ़ते हैं. ये basic difference समझ में आया? Chemical kinetics it talks about rate of reaction. Now, let's start with the basic definitions to clear out things. एक बहुत ही generic reaction का मैं example ले रहा हूँ. इससे कोई general reaction है. A plus B is going into C plus D, and small a, small b, these are their stoichiometric coefficients. Right? So let's first clear out the definitions first. Now, mole concept से हमने पढ़ा था. For a balanced reaction like this, moles of A consumed divided by its stoichiometric coefficient will be equal to moles of B consumed divided by its stoichiometric coefficient will be equal to moles of C produced divided by its stoichiometric coefficient will be equal to moles of D reduced divided by its stoichiometric coefficient. ये सबको याद है? Right? Now, in this chapter we will talk about rate. Rate is basically rate of change of concentration per unit time. Now, taking a derivative of time here, we will realize that rate of reaction, this will be equal to 1 upon A, moles of A changing with respect to time. इसमें मैं आता हूँ 1 upon E dA by dt is equal to 1 upon B dB by dt, 1 upon C dC by dt is equal to 1 upon D d by dt. The thing is, rate of a reaction, right, or for that matter any rate is always mentioned as a positive value, right? तो होगा क्या कि यहाँ पर ये दोनों A और B कंज्यूम हो रहे हैं, तो इनका D का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव रहेगा, right? बट हमें रेट मेंशन करनी है पॉजिटिव में. रेट हमेशा पॉजिटिव में मेंशन करी जाती है. तो what we do is we introduce a negative sign for A and B. Right? These are getting consumed, whereas these are getting produced. तो DC का साइन पॉजिटिव रहेगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाली है, इसमें हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है. ऐसे DD का साइन भी पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पे भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है. Right? So when you are asked what is the rate of the reaction, या फिर कई बार ऐसे लिख देते हैं what is the overall rate of reaction, it can be expressed in terms of any species that is there in the reaction, and this is how you do it. ये समझ में आया?
Along with this, there are certain other terms which also come. अब ऐसा आता है कि rate of reaction with respect to A कितना है, या फिर rate of consumption of A, या फिर rate of disappearance of A. ऐसे आपके सामने terms आते हैं, तो एक बार उनको भी आप बहुत क्लियरली समझ लो. Stop this part. Rate of reaction with respect to A, this will be equal to minus sign dA by dt. यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगेगा, with respect to A बात नहीं जा रही है, एंड नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव में लिखनी है. या फिर आपको बोल दिया जाए रेट ऑफ कंजम्पशन of A, it will be minus dA by dt. या फिर आपको बोल दिया जाए rate of disappearance of A, it will be again minus dA by dt. यहाँ पे कोफिशिएंट का यूज नहीं होता है, जस्ट A के बारे में बात कर रहे हैं. ये चीज क्लियर है? It is very important for you to understand these differences, subtle differences. Overall rate of reaction, stoichiometric coefficient use होता है. When you are writing these rates with respect to a particular something, इसमें stoichiometric coefficient use नहीं होता है. If I ask you rate of appearance of C क्या होगा, तो आपका आंसर होगा dC by dt. Just rate of appearance of C, right? Coefficient मत use करना, just dC by dt. ये चीज क्लियर है सबको? तो ये एकदम बेसिक्स हो गए. अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, एंड दिस इज आई विल हाईलाइट एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है. These A, B, C, D, these are concentrations. इनका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, जो यहाँ पे मैंने ऐसे A, B या फिर C या फिर D ऐसे मेंशन कर रखा है. इनका यूनिट इज मोलर, या फिर ऐसे लिखो मोल पर लीटर. अगर आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है दैट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज 1 kg per second, उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पहले और फिर फॉर्मूलाज में यूज करना, otherwise you'll end up making a mistake. एक क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? If rate of disappearance of A is given, let's say क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि rate of disappearance of A is 1 kg per second, आपको rate of disappearance of B निकालना है. तो उनके बीच का रिलेशनशिप हमें पता पड़ गया, राइट? बट ये रिलेशनशिप किस में है? ये A और B की मोलर कॉन्सेंट्रेशंस के बीच में. तो पहले A का आप kg per second से मोलर पर सेकंड में करो, राइट? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके वैल्यू निकालो. जो रिजल्ट आएगा उससे आपको B का अगेन मोलर पर सेकंड रेट मिलेगा. और फिर हो सकता है ऑप्शन में आपको आंसर जो ऑप्शन में kg पर सेकंड में ही हो, तो फिर उसको B के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. चीज समझ में आई? इट्स अ वेरी कॉमन ट्रिक क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बेस्ड अपॉन दिस. Is this something clear? एक फटाफट लिखो then I'll wrap this. Sir, B का concentration kg per second में पूछा और A का kg per second में दिया होगा, तो फिर उसमें भी कन्वर्ट करेंगे. ये दिया हुआ है kg per second में और ये भी पूछा है kg per second में. तो पहले ये kg per second को मोलार पर सेकंड में कन्वर्ट करो. लेकिन क्यों kg per second में नहीं, बट आपका ये जो रिलेशनशिप है ये जब भी वैलिड है जब दोनों कॉन्सेंट्रेशंस मोलार पर सेकंड में लिखे हो, दोनों रेट्स मोलार पर सेकंड में लिखे हो. तो kg per second को आप पहले मोलार पर सेकंड में लिखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको A और B का वैल्यू पता होगा, तो आपको dB by dt पता पड़ जाएगा, which will be in मोलार पर सेकंड.
अब उसको वापस कन्वर्ट करो kg per second. Let's move on to the next thing. जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है, राइट, तो क्वेश्चन में that for a particular reaction this is the rate expression इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, तो मेक श्योर साथ में उसका इक्वेशन भी लिखा हुआ होना चाहिए. जो पॉइंट यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ द रिएक्शन लेट्स से अमोनिया फॉर्मेशन N2 plus 3H2 gives 2NH3, आपको बोला जा रहा है कि let's say this is an elementary reaction, तो आप इसका रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिख दोगे, राइट, गिवन दैट दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन. ये वर्ड समझ में आता है एलिमेंट्री रिएक्शन? नहीं आता? चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, इसको एक बार मैं समझा देता हूँ एलिमेंट्री को, फिर मैं आपको इस चीज का पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ. द थिंग व्हिच आई वाज ट्राइंग टू कम अप इज दैट एक पर्टिकुलर बैलेंस्ड रिएक्शन में जो कोफिशिएंट्स यूज होंगे वही आपके ऑर्डर यूज होंगे इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री. बट ठीक है, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द बेसिक्स फर्स्ट. एलिमेंट्री आपको अगर एक बार समझ में आया तो मैं वो समझा देता हूँ, फिर इस पर आते हैं. ऑलराइट, अभी इतना पार्ट समझ में आया. why are we studying this chapter? To understand the rate of reaction, right? And for a generic reaction, how do we write the overall rate of reaction, and with respect to individual species, how do we write their rates? इतना पार्ट क्लियर है. Now rate of a reaction depends upon, there are many factors upon which the rate of a reaction depends. Three most important factors जो कि आपको पता होने चाहिए. One is concentration of reactants and products. Second, temperature. Third, presence of a catalyst. There can be other factors as well. For example, कोई रिएक्शन गैसियस फेज में ज़्यादा फास्ट होगा as compared to if the reactants are present in solid phase. कोई अगर फोटोसेंसिटिव रिएक्शन है, right, तो it will happen at a higher rate in higher intensity of light. कोई रिएक्शन ऐसा है which gets influenced by electric and magnetic field, तो फिर उसके फैक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी आ जाएगी. But these are other factors जिन पर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते. Our primary focus is on these three factors. Right? एक एक करके हम इनको लेकर चलते हैं. Let's first talk about concentration as a factor. Now concentration as a factor, right? अगर आपका रिएक्शन है कोई सिंपल रिएक्शन टाइप A goes to products, right? Then rate of a reaction will be proportional to the concentration of A raised to the power of some number, let's say x. Now this x is called as order of reaction. Let's say if my reaction type is something like A plus B gives products, then rate of reaction can be proportional to A raised to the power of x and maybe concentration of B raised to the power of some value y. X is order of reaction with respect to A. Y is order of reaction with respect to B. And x plus y is called as the overall order of reaction. The term order, इसका सिग्निफिकेंस यही है, ये आपको समझाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंडेंट है, मगर कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंडेंट है. कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 से 2 से 3 से कैसे डिपेंडेंट है, ये वाला पार्ट समझ में आया.
Now understand couple of important things about order. Right? यहाँ पर observe करना order of reaction with respect to a particular reactant, a particular species. Right? Order of reaction with respect to a particular species, it can be positive, it can be negative, it can be zero, it can be a fraction. पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है. You can find various examples which will give you positive values of order, zero order of reaction. Right? However, overall order of reaction will never be negative. जो overall order है, overall order इस केस में जैसे ओवरऑल ऑर्डर कैसा है x plus y, right? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो और कैन बी फ्रैक्शन, बट विल नॉट बी नेगेटिव. इस चीज का भी ध्यान रखना फ्रॉम अ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू. राइट नाउ फ्रॉम MHCT point of view, let's go into the kind of questions or numericals that are asked. अच्छा, for a reaction जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, जैसे सिंपल ये वाला रिएक्शन है, A goes to products. Rate of reaction is proportional to concentration raised to the power of x, and x is the order of reaction. Now इस चीज की गलती मत करना कि x का वैल्यू is equal to the stoichiometric coefficient. It may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. मैं थोड़ा टाइम में समझाऊंगा, पर अभी से मैं आपको बता देता हूँ that this order may or may not be stoichiometric coefficient. थोड़ी देर में समझा दूंगा कि कहाँ पर होगा और कहाँ पर नहीं होगा. Clear? Now, as I said, from a problem solving point of view, dependence upon concentration, we are going to talk about order of reaction. We will be covering zero order reaction, right, as well as first order reaction. From MHCT point of view, our understanding or mathematics of zero order reactions as well as first order reactions is more than sufficient. जेई वगैरह के लिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ाते हैं, जहाँ पर you go into second order reactions या फिर किसी में fractional order होता है या फिर nth order reactions वहाँ तक जाते हैं. But as far as I have seen last year papers of MHCT, अगर आपको zero order और first order के equations अच्छे से आते हैं, that is more than sufficient. Right? तो zero order reaction क्या होगा? Right? Rate will be proportional to concentration raised to the power of zero. ठीक है? तो यहाँ पर observe करना. Let's say मेरा reaction type, right, type by type चलेंगे. Let's say एक simple reaction type है. Reaction type is A goes to B. ये मेरा reaction type. Now for this reaction type, I am saying it's a zero order reaction. Zero order reaction मतलब क्या होगा? Rate will be proportional to A raised to the power of 0. Right? कैसे मैं समझा? Now this proportionality can be converted into mathematical equation by introducing a constant of proportionality. The rate can be written as k into a की power 0. Right?
rate constant or sometimes called as velocity constant. यूनिट ऑफ के क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ के. डायमेंशन एनालिसिस हमने करके बताया. लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट कितनी है, मोलार पर सेकंड. राइट हैंड साइड में a की पावर 0 होगा तो यूनिटलेस हो गया, तो k की यूनिट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए. इस यूनिटलेस विल बी मोलार पर सेकंड या फिर मोलार पर टाइम. टाइम कैन बी सेकंड, इट कैन बी आवर्स, मिनट्स, जो भी आपको चूज करना है. लेट्स टॉक अबाउट SI वैल्यूज. तो मोलार पर सेकंड. क्लियर. नाउ दिस इज समथिंग which we'll now have to study a little more in detail. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना this part of the board. A goes to B, इसको हम लोग ठीक है दो डिफरेंट नोटेशंस के फॉर्म में ऑब्जर्व करेंगे. इसी इक्वेशन को मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा. दो कॉमन नोटेशंस आपको ऑलमोस्ट हर टेक्स्ट बुक में मिलते हैं. राइट, एक बार मैं दिखा दूं आपको समझ में आ जाएगा. एक नोटेशन कैसा होता है, एक नोटेशन होता है स्मॉल a और x के टर्म्स में, और एक होता है कैपिटल A के टर्म्स में. राइट, दोनों को ऑब्जर्व करना. राइट, एक बार मैं किसी की लिखना चाह रहा हूँ जो हमारा ये रिएक्शन है. A goes to B. यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ इनिशियली A प्रेजेंट था. राइट, दिस वाज T equal to 0. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A वर A, एंड एट सम टाइम B तो 0 था, एंड एट सम टाइम T इसके A minus x and x मोल्स होता है. ठीक है. एक और नोटेशन जो कि यूज होता है वो किस तरीके से होता है, A goes to B, T equal to 0 पर ये A0 था, ये 0 है. At some time T this becomes AT, right, and this will become BT. तो ये डिफरेंट नोटेशंस यूज होते हैं. लेट्स बी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दोनों बहुत कंफर्टेबली हम लोग सॉल्व कर लेंगे. ये जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है ये वैलिड है यहाँ पर, इसको यूज करते हैं. जो रेट होता है जैसे हमने देखा था, रेट विल बी इक्वल टू माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है a का 1, तो माइनस 1/1 dA by dt, and this will be equal to k into a की पावर 0, and a की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं. राइट, अब यहाँ पर देखो a एट टाइम भी कैसा है, a minus x, तो यहाँ पे माइनस d of a minus x by dt is equal to k. a तो कांस्टेंट है तो dA by dt 0 होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ dx by dt. dx by dt is equal to k. राइट, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं. ये dt को इधर लेके चले गए और इंटीग्रेट कर दिया. लिमिट्स कैसी है, टाइम की 0 से t और x की 0 से x, तो यू गेट x is equal to kt. Right, what will be the value of concentration of A at time t, A minus x, right, so concentration will be A minus kt. Right, concentration of A at time t is equal to A minus kt. इस तरह से लिख सकते हो. ये वाला नोटेशन में कैसे हो जाएगा, अगेन रेट इज इक्वल टू माइनस 1/1 dA by dt is equal to k. राइट, अभी इनको a के फॉर्म में रख लेते हैं. ये कैसे हो जाएगा, माइनस dA by dt is equal to k. Let's take this dt to right hand side. Let's do an integration. लिमिट कैसी रहेगी, t की 0 से t, एंड a की लिमिट कैसी रहेगी, a0 से at. राइट, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा, at will be equal to a0 minus at. Right, so you should be comfortable with both the notations. Is that clear?
these forms जो मैंने आप ऐसे बॉक्स में मार्क करें, these are called as integrated forms of rate law. जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसा है? ये तो कैसा था, ये डिफरेंशियल फॉर्म था, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है. ये समझ में आया? दोनों नोटेशन से कंफर्टेबल है? ठीक है. नाउ दिस वाज फॉर अ रिएक्शन टाइप A gives B. Right? A very simple reaction type. मान लो इसी को मैं थोड़ा सा ट्विक कर देता हूँ. फटाफट लिख लो इसको, जो भी चीजें आपको लगा है इसमें इम्पोर्टेंट है. So let's do more of theory today, right? And in the next class we will do the types of questions that have been coming in NPCH. From again, as I said, from a problem solving point of view, NPCH में simpler questions आते हैं. It's more about the speed of solving. ठीक है? एक बार बस अपने concepts clear करते जाएंगे यहाँ पर हम लोग. कहीं को भी conceptual doubt है, feel free to ask. लिख लिया सबने? Now let me do some of the graphs. ठीक है, ग्राफ्स की भी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए about let's say zero order reaction. फर्स्ट ऑर्डर के भी ग्राफ्स के बारे में हम समझेंगे. तो डिफरेंट ग्राफ्स कैसे बनते हैं. हमने इक्वेशंस तो निकाल लिए यहाँ पे, इक्वेशंस आगे तो ग्राफ भी निकालने आ जाएंगे. Now let's say I ask you the first graph. First graph is, let us say, rate of reaction with respect to concentration. Right? इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका स्ट्रेट लाइन पास कर लो इसमें. आप याद करो ना, इसका एक्सप्रेशन कैसा है? जीरो ऑर्डर का. रेट is equal to k into concentration की पावर 0. concentration पे डिपेंडेंस खत्म हो गई है. Right? So it will be a horizontal line, horizontal straight line. ये समझ में आया? इसको फटाफट कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट ग्राफ बनाऊंगा. ये समझ में आया? नेक्स्ट ग्राफ मुझे बताओ. अच्छा, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ कैसा होगा? It's not going to change ना. Rate is a constant. a की पावर 0 हो गया तो ये तो सिर्फ k के बराबर बचा. राइट? k is constant. k सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है. जैसे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था ना आपने, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करने वाला. राइट? तो रेट इज कांस्टेंट. सेम ग्राफ. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं फटाफट. Let's say a graph between concentration versus time. Concentration of both A and B plot कर रहे हैं अपने. A का ग्राफ कैसा होगा? Straight line with a negative slope. That will be the graph of A. Right? आपने को यहाँ से इक्वेशन मिल रही है ना? Right? तो स्टार्ट कहाँ से होगा? किसी A नॉट वैल्यू से, and then it will be going down. Right? किस टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा? पुट कर दो ना, A का वैल्यू 0, AT का वैल्यू 0 पुट कर दो. तो किस टाइम पर? A नॉट बाय K.
दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बी का ग्राफ कैसा होगा? बी का ग्राफ ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पर हमने बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? x निकाला है यहाँ पे, x इज इक्वल टू जस्ट kT, सो इट विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। एंड इस टाइम पर जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, इट विल रीच अ वैल्यू A0, राइट। जब खत्म हो जाएगा रिएक्शन तो ये A0 से A0 बन जाएगा ना, समथिंग लाइक दिस। ये समझ में आया? तो फटाफट लिखो इसको। दिस इज द ग्राफ ऑफ B। क्लियर? ठीक है। नाउ एक और कॉन्सेप्ट जो इसी में है, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टी हाफ और हाफ टाइम और हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, ये ग्राफ कॉपी कर लिया सबने, राइट। जीरो ऑर्डर के अंदर ही लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज half life of a reaction, and it is represented by as a t subscript में half. What it means is time taken by reaction, right? Time taken by reaction to go to 50% completion. ये समझ में आया? इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 50% जाना है रिएक्शन, राइट। मतलब 80 कितना हो जाना है? A0/2, राइट। तो यहाँ पे 80 को A0/2 सब्स्टिट्यूट करा तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? A0/2। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, A0/2। ये क्लियर है आपको? Now, let me do a small mischief here. Let me complicate things a little. Reaction type अभी हमने ऐसा पढ़ा, एकदम simple type. A goes to B. Let's say our reaction type becomes some PA goes to QB. कोफिशिएंट लगा दिया मैंने, कुछ भी रैंडम से P and Q। और अब इनके हम रेट लॉस के डेरिवेशन देखते हैं, कैसे चेंज होगा इसके अंदर। ऑब्जर्व करना, A इनिशियली A प्रेजेंट है, टाइम T पर अगर इसमें से X कंज्यूम हो रहा है तो B कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? Q/Px, राइट। अच्छा, रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? रेट विल बी इक्वल टू नाउ -1 अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट -1 अपॉन P dA/dt विल बी इक्वल टू K इनटू A की पावर 0 यहाँ पर माइनस ऐसे 1 अपॉन P d A माइनस x अपॉन dt विल बी इक्वल टू K, राइट। तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा? 1 अपॉन P dx by dt is equal to K. You will get x is equal to P K T. ये ऑब्जर्व हुआ, राइट। T का लिमिट 0 से T, x का लिमिट 0 से x। ये चीज समझ में आया सबको? बिकॉज ऑफ चेंजिंग द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा ट्वीक हो गया। नाउ सेम इस वाली नोटेशन में ऑब्जर्व करना,
वाले नोटेशन में भी रेट का एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट P dA by dt is equal to K into A की पावर 0, राइट। इस P को इधर लेके चले गए, इंटीग्रेशन परफॉर्म करा, T का लिमिट 0 से T और A का A नॉट से T, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, A will be equal to A नॉट माइनस TKT, राइट। ये समझ में आया। B का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा रहेगा, B naught minus Q. नहीं, there is no B naught, it is 0, it will be Q by P into X, और X का निकाला TKT, राइट। तो आपका क्या आंसर आएगा, Q KT। ये क्लियर है? See, that's what I was trying to say earlier. When you change the stoichiometry, तो आपके रिजल्ट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, राइट। तो before putting the formula directly, make sure the reaction type which you are working with is clear to you. अगर A to B हो रहा है तो आपके जो आपने फॉर्मूले खूब सारे याद करे थे वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं, मगर अगर स्टोइचियोमेट्री थोड़ा सा चेंज कर दिया है, राइट, तो उसमें अकॉर्डिंगली थोड़े से ट्वीक आ जाएंगे। ये चीज क्लियर है? T हाफ कैसा हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे डाल के देखो आराम से, AT should become A naught by 2, A naught by 2 PK, clear? This is clear with everyone? Right. Now let's move on to first order reactions. Right, first order reaction है आपका, let's say reaction type, again we start with a very simple reaction type. The reaction type in this case, A goes to B, very simple reaction type. Now in this particular reaction type, we are seeing the order of reaction is 1. This means that rate of reaction will be proportional to A raised to the power of 1, right, and changing this proportionality into equation, bringing the proportionality constant K into A raised to the power of 1. Concentration of A raised to the power of 1. This K, as we have highlighted before, is the rate constant. What will be the unit of K this time? Second inverse. ये समझ में आया कैसा है? अब इसके अपन वापस इंटीग्रेटेड रेट का निकालते हैं, सेम कैलकुलेशंस करेंगे। हम दोनों नोटेशन को यूज कर लेते हैं। And the reaction is simple, A goes to B. एक नोटेशन कैसा है? इनिशियल A है, T is equal to 0 टाइम पर, किसी T टाइम पर A minus X है, X हो गया। दूसरा नोटेशन क्या था? A goes to B है, T टाइम पर it is A naught, sorry, T equal to 0 पर it is A naught, and some T टाइम पर it becomes AT, and this is some BT। ये करके सॉल्व करते हैं। इस वाले में rate of reaction is equal to minus 1 upon 1 dA by dt is equal to K into A की पावर 1। सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। इधर माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है?
a minus x at time b. राइट, अगेन ये dx by dt हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, dx by dt is equal to k a minus x. राइट, नाउ इंटीग्रेट करना है तो कैसे करते हैं, x वाले टर्म्स एक तरफ, t वाले टर्म्स एक तरफ. राइट, तो मैं इसमें कैसे लिख दूंगा, dx अपॉन a minus x is equal to k dt, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं. राइट, टाइम की लिमिट कैसी होगी, 0 से t, x की लिमिट 0 से x. अब 1 अपॉन a माइनस x का इंटीग्रल आता है आपको माइनस लॉन ऑफ a माइनस x, राइट, माइनस लॉन ऑफ a माइनस x. तो यहाँ पे आपका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस लॉन ऑफ a माइनस x, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to x and this is kt, limits are from 0 to t. Is this clear? Right, now we put the limits. तो आपका यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, right, let me put the result here only, क्योंकि इतना नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को. Let me put the result here. It will be ln of, कि माइनस साइन को मैं इधर लेके चल जाता हूँ, right, तो a minus x upon a is equal to minus kt. राइट, या फिर ऐसा करते हैं माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके रखते हैं और फिर इसकी पावर में लेके चल जाते हैं जो ln के अंदर है. तो ये कैसा हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा ln of a upon a minus x is equal to kt. ये आपका ऐसे स्मॉल नोटेशन में रिजल्ट रहेगा. ये समझ में आया, जो कैप्स वाला नोटेशन होता है उसमें भी ऑब्जर्व कर लो. वेट विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 dA by dt is equal to ka. राइट, अगेन इंटीग्रेशन करना है, a वाले टर्म एक तरफ, t वाले टर्म एक तरफ, तो माइनस dA by a is equal to k dt. इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट t की 0 से t, a की लिमिट a नॉट से a t. 1 अपॉन a का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln a, तो माइनस ln a लिमिट्स a नॉट से a t is equal to k t लिमिट 0 से t. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ln a t अपॉन a नॉट is equal to माइनस माइनस लिया मैंने उधर. राइट, इसको इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल टर्म में ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं. तो ये ln को इस तरफ लेके चले जाओ तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा at is equal to a नॉट e की पावर माइनस t. ये समझ में आया. This is for a simple reaction type, A goes to B. Clear? इसको लिख लो एक बार, फिर मैं इसके ग्राफ्स भी करवाता हूँ. तो हम क्या कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक, जैसा हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन कि हम डिपेंडेंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं. राइट, एंड वो ऑब्जर्व करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, हम कंसंट्रेशन बता पा रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ और सब पूछोगे कि 100 सेकंड्स के बाद में राइट इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो मैं बता पाऊंगा. आई विल टेल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, द वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आई कैन टेल अबाउट the kinetics of the reaction. This is what is called as kinetics of the reaction. Yeah? तो इसे ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के. सबसे पहला ग्राफ जैसे अपन ने लास्ट टाइम करा था, इसके ऑर्डर में चलते हैं.
रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, ये कैसा होगा? Straight line passing through origin, right? Rate is proportional to a raised to the power of 1, right? तो जितना concentration होगा उतना आपका rate of reaction हो जाएगा. Simple. Next graph observe करना, rate of reaction with respect to time. Rate as a function of concentration तो पता है, right? हमें चाहिए कि राइट हैंड साइड में टाइम का एक्सप्रेशन मिल जाए, ताकि हम वेरिएशन बता पाएंगे. नहीं? Do we know a का एक्सप्रेशन? It will be a naught e की पावर माइनस kt. Right? So I can write this as r is equal to k. a को मैं क्या लिख सकता हूँ? a naught into e की पावर माइनस. ये वाला ग्राफ कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ, राइट? t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? k इंटू ए नॉट, और t इक्वल टू इंफिनिटी पर ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी. इसका ग्राफ कैसा होगा? समथिंग लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली डिके. नेक्स्ट ग्राफ बताओ. Let's say I'm going to draw a graph of concentration versus time का graph, right? Concentration of A हमारे सामने expression है, कैसा होगा? Again exponential decay, right? You start at some concentration value which is A naught, and then it will decay with time. Clear? B का ग्राफ कैसा होगा? B का ग्राफ कैसा होने वाला है? कैसा होगा? मतलब ऐसे इंक्रीज होगा या फिर ऐसा होगा? It has to achieve some final constant value, right? It cannot be this. मतलब टाइम के साथ बढ़े जाता है, ऐसा तो ना होगा. It will achieve some finite value after some time. Right? So it will be something like this. It will be approaching a naught. Right? यहाँ से आप निकाल भी सकते हो. आप जब x का एक्सप्रेशन निकालोगे, x का एक्सप्रेशन निकालोगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे इसको आपने फर्दर सॉल्व किया, ln a upon a minus x is equal to kt, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, इससे आपको मिल जाएगा a upon, और इनफैक्ट इनवर्स लेते हैं, a minus x upon a will be equal to e की पावर minus kt, राइट? तो ये कैसा हो जाएगा? इस a को इधर लेके चल जाते हैं और इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो a 1 minus e की पावर minus kt will be equal to x. This is what B का concentration would be, right? टाइम 0 पर कितना हो जाएगा? टाइम 0 पर ये वैल्यू 1 है, 1 minus 1 0. एंड टाइम इंफिनिटी पर ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये a के बराबर पहुंच जाएगा. So it will be this way. This is the graph of the concentration of B. Clear? ग्राफ समझ में आ रहा है सबको? T half कैसा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, राइट? अगेन T half will be, ये मैं रब कर दूं, T half, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम व्हेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड. 80 will be a naught by 2, तो a naught कैंसिल हो गया, तो 1 by 2 is equal to e की पावर माइनस kt. दोनों तरफ ln लिया आपने, तो आपको कितना आ जाएगा? ये आपको कितना come out to be ln by k. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट करने के लिए, दैट t half is independent of concentration of A.
पिछले वाले में डिपेंडेंस था ना, अगेन इसी में मैं कॉम्प्लेक्सिटी वापस ला सकता हूँ। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर मैंने चेंज कर दिए, इंस्टेड ऑफ 1 1 लेट्स से p कॉमा p a gives q b, तो इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। क्विकली लिख लें वो चेंजेस एक बार, समझ में आएगा अपने को। लेट्स से अगर हमारा रिएक्शन टाइप, राइट, इफ इट बिकम्स pa से qb, तो ये इनिशियली a है, लेट्स से x कंज्यूम होगा, तो ये कितना बच जाएगा q by px। रेट का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, -1/p dA by dt is equal to k into a की पावर 1, राइट। ये पूरा सॉल्व करके p को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। ये एज इट इज सॉल्यूशन चलता जाएगा। And then a upon a minus x will become equal to pkt, right। x की value will become a into e की power minus pkt, clear। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑब्जर्व करना, वही थॉट प्रोसेस चलेगा। p से q जा रहा है, राइट। रेट विल बी -1/d by dt is equal to ka, राइट। ये p कंटीन्यूअसली इधर चलता जाएगा एंड इट विल बिकम at is equal to a naught e की पावर माइनस pkt, राइट। अगर मैं आपसे पूछूंगा bt का एक्सप्रेशन बताओ, bt का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, e to the power q by p into x, right। So q by p multiply by this value x, right। So q by p into this expression a naught, a को हम a naught से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, into 1 minus e की पावर minus pkt, this will become the expression for dt, clear। Is this understood? Right. ये मैंने आप कर दो अभी लेफ्ट हैंड साइड वाले एटलीस्ट। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक और केस का है जो कि आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ। अभी जैसे हमने बात कर रहे हो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंजम्पशन, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ के बारे में भी हम बात करते हैं, राइट। सो लेट्स टेक अ रिएक्शन टाइप फर्स्ट ऑर्डर इन विच ग्रोथ इज गोइंग टू हैपन, राइट। इसमें बहुत सिंपल सा फंडा होगा। फॉर एग्जांपल आई कैन गिव एन एग्जांपल, ऐसे कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, राइट। कुछ ऐसे कुछ फूड का आइटम पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फंगस लगा हुआ है, राइट। नाउ दैट फंगस इट ग्रोज एंड इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। सो द आइडिया वुड बी, लेट्स से फंगस बोल रहा है, बैक्टीरिया बोल रहा हूं, बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन it will be changing with respect to time and the rate of change of concentration it follows first order kinetics. This will be equal to proportionality constant into b की power 1। यहाँ पर से डिफरेंस क्या था पिछले वाले केस और इस वाले केस में, यहाँ पर पहले माइनस साइन आ रहा था। You should talk about the decay, यहाँ पर ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। तो D stands for let's say some bacterial growth and the rate of growth
एक्सप्रेशन फॉर्म। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको कैसा मिल जाएगा, b इज इक्वल टू b नॉट इंटू e की पावर t। जैसे इसको इंटीग्रेट करा, b वाले टर्म्स एक तरफ, t वाले टर्म्स एक तरफ, राइट, एंड जस्ट इंटीग्रेट। b का लिमिट b नॉट से b एंड t का लिमिट 0 से c। ये समझ में आया फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ के बारे में? सर दिस इज आल्सो रिएक्शन टाइप जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका अगर बन जाए कि एक बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है, इट इज ऑल फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो इट इज नॉट समथिंग न्यू, यू हैव ऑलरेडी सीन इट। क्लियर? अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्विक रिकैप, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसा होता है, वो हमने समझ लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हमने देखा। तीन मेजर फैक्टर्स है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। उसके अलावा बाकी सब अदर फैक्टर्स में हम काउंट करते हैं। जो कंसंट्रेशन वाला फैक्टर है उसी को अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन वाले फैक्टर में हमें समझ में आया कि रेट इज डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन, बट देन कंसंट्रेशन की कैसी पावर पे डिपेंड करेगा उसे हम ऑर्डर कहते हैं, राइट। एंड ऑर्डर, मैंने आपको उसका थ्योरी बताया, ऑर्डर कैन बी लाइक फॉर इंडिविजुअल रिएक्टेंट, इंडिविजुअल स्पीशीज इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और जीरो, बट फॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट कैन बी नेवर नेगेटिव, राइट। एंड फिर हमने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ग्राफ में इनके हम अच्छे से ऑब्जर्व करें। एंड एक और हमने इंपॉर्टेंट चीज समझी व्हिच इज फ्री हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, राइट। नाउ इसमें थोड़ा सा और डिटेल में क्वेश्चन कैसा जाता है, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा से हो सकता है ऑर्डर फाइंड करने को मिल जाए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डर है रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन का, और मैंने आपसे पूछा कि अच्छा नाउ मुझे बताओ कि कंसंट्रेशन का टाइम के साथ में कैसा फंक्शन रहेगा, किस टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन होगी, वो आपने अच्छे से निकाल के बता दिया। आपसे क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछा जा सकता है। आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा मिल जाएगा कि ये इस टाइम पर ये कंसंट्रेशन है, तो क्या आप उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, राइट। सो दिस नेक्स्ट सब टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का ऑर्डर हम किस तरीके से डेटा से बता सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन में मिल जाए लिखा हुआ है कि अच्छा ये रिएक्शन और इसका ही ऑर्डर है, अदरवाइज डेटा से पिकअप करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक लिखो, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे बेसिक मेथड होता है फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। किसी रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन किया है कि ये ऑर्डर है रिएक्शन का, अगर बोला जा रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर द रिएक्शन 2N2O5 decomposing into let's say 2N2 plus 5/2. Just taking a hypothetical example. इनफैक्ट शायद यहाँ पे NO आता है, let's take it to be NO. Maybe some hypothetical reaction like this. अब दिया हुआ है for the reaction
the rate constant is 2.31 into 10 raised to the power of -2 second inverse, given initial concentration of N2O5 is equal to 0.1 molar. Calculate concentration of N2O5 after 100 seconds. ये डेटा मैंने ऐसे रैंडमली जनरेट करके दिया है, मुझे कैलकुलेशन में अच्छा नहीं बैठे, बट द पॉइंट इज कॉमन केयरलेस मिस्टेक जो स्टूडेंट कर देते हैं वो क्या कर लेते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के मान लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया है रिएक्शन का जो कोएफिशिएंट है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इट मे और मे नॉट बी ऑर्डर, वी कैन नॉट से, राइट। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हमें इस रेट कांस्टेंट से पता पड़ेगा। इसका यूनिट दिया हुआ है सेकंड इनवर्स, मतलब इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये समझ में आया? तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एंड अगेन इक्वेशन लिखने में ध्यान रखना, डोंट जस्ट ब्लाइंडली यूज द फॉर्मूला। ब्लाइंडली फॉर्मूला यूज कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें -1/2 समझ में आया? -1/2 क्यों होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है। -1/2 d into O5 by dt will be equal to k into O5 की पावर, ये आ गया। समझ गए? तो आपका आंसर कैसा आ जाएगा, into O5 का concentration at time t will be equal to into O5 का concentration at time 0 into e की पावर -2k e। समझ में आया? Let's not get tricked by such simple things, इसका ध्यान रखो। क्लियर? फटाफट लिखो। नहीं, इस केस में नहीं करेगा ना, फर्स्ट ऑर्डर कोई भी रिएक्शन फर्स्ट हाँ नहीं करेगी, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी। अगर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं, अगर स्टोइशियोमेट्री चेंज करेगा। सी जब भी आपको रिएक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है, राइट, और उसके हिसाब से आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, राइट, तो फिर आप उसी तरीके से अपना टी हाफ का फॉर्मूला डिराइव करना। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूंगा टी हाफ कितना होगा, राइट, नाउ टी हाफ यू शुड नॉट जस्ट ब्लाइंडली डू विद ln2/k, राइट। यहाँ पर आपने देखा ना क्या एक्सप्रेशन आया आपका, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट कम्स, राइट। अब टी हाफ कैसा होगा, टी हाफ विल बी व्हेन N2O5 is divide by 2, this value divide by 2, right? So आपका at t half 1/2 will be equal to e की power -2k t half। ये समझ में आया, right? तो अब यहाँ पर ln2 is equal to 2k t half हो गया। तो t half का वैल्यू क्या हो गया, ln2/2k। हाँ, मैं वही पूछ रहा था, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। ये समझ में आया? क्लियर है सबको? इसलिए मैंने आपको बताया जो भी फॉर्मूला हमने निकाले हुए हैं, जो आप हमेशा याद करते हो, those are only for a very elementary simple type of reaction type A is equals to B, उस सब के लिए है वो। थोड़ा सा भी ट्रिक हो जाएगा, let's not forget, and it's a very simple trick। कुछ डाउट है? एक्स्ट्रा काम
केमिकल रिएक्शन निकालने। अच्छा, ये समझ में आ गया सबको? हाँ, ये विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्पीशीज है ना जो ये रिएक्शन है कि ओवरऑल है। ओवरऑल रेट निकाला। भाई मैंने ओवरऑल रेट का एक्सप्रेशन लिखा ना, देखो रेट, ये ओवरऑल रेट है। ओवरऑल रेट इज, उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंक्लूड करते हैं, इनटू d इनटू O5 by dt इज इक्वल टू k इनटू n2O5 की पावर 1। ओवरऑल रेट है। अगर मैं आपसे पूछता कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ n2O5 क्या है, तो आपका आंसर होगा सिर्फ माइनस d n2O5 by dt। अगर आपसे पूछा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ n2O5 क्या है, क्लियर? ये फंडामेंटल क्लिक करा है सबको? इसको रब कर दूं मैं, फटाफट लिख लो इसका। रब कर दे। नेक्स्ट फैक्टर ऑब्जर्व करना, और नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फ्रॉम हाफ लाइफ, राइट? अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बट कोई भी nth ऑर्डर का रिएक्शन होगा, कोई भी nth ऑर्डर का रिएक्शन होगा, उसका हाफ लाइफ विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 upon the initial concentration raised to the power of n minus 1, where n is the order, right? तो यहाँ से जैसे हमने अपना ऑब्जर्व किया हुआ है, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला डिराइव करे थे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon a naught, दिख रहा है आपको, राइट? एंड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a naught raised to the power of 0। इनकी वैल्यू वन रखा ना, which means T half is independent of the concentration, right? Implies T half is independent of the concentration। तो जीरो ऑर्डर Zero to the proportional to Yeah. proportional to a naught. Oh sorry, 0 minus 1, yeah, minus 3 proportional to a naught आ जाएगा, 0 minus 1 ऊपर चला जाएगा। ये चीज समझ में आया? इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एक बार आपको समझा देता हूँ। इस चीज को याद रखना, दिस इज अ क्वेश्चन रिजल्ट। इसका एग्जांपल जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरा आपको ऊपर वाला पार्ट, एग्जांपल ऑब्जर्व करो, अपॉन, और इस तरीके देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन, जस्ट हाइपोथेटिकल डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, रेट ऑफ अ रिएक्शन becomes 16 times what rate of a reaction? In fact, half
becomes 16 times when the concentration of reactant is half. Right? Find the order of reaction with respect to the reactant. आ रहा है इनका वैल्यू 5। T half जैसे मैंने बताया is proportional to a naught raised to the power of n minus 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं हाफ करने वाला हूँ। तो ऊपर जो नीचे 2 आने वाला है 2 की पावर n minus 1 वो ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर n minus 1 ऊपर चला गया, and then 2 की पावर n minus 1 will be 16। मैथमेटिकली कर लेते हैं, चलो अब हमें समझ में आ रहा, मैथमेटिकली कर लो। T half is proportional to this, ये समझ में आया। इसको किसी हम मैथमेटिकल इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं T half is equal to some constant beta into 1 upon a naught की पावर n minus 1, राइट। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, T half for a set 1 data is equal to beta into a naught n की पावर 1 for set 1 data। T half for the second set of data will be again equal to b naught into 1 upon a naught की पावर n minus 1 for the second set of data, right। अब यहाँ पर क्या है, second set of data is that a naught is half, right, and this value is 16 times this value, 16 times T half है ये। अब दोनों को डिवाइड कर दो, right, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, 16 will be equal to 2 की पावर n minus 1, right, so n आपका आ गया, order of reaction is 5। ये समझ में आया? Clear? How we can find order of reaction with respect to this method? Clear? Next method पढ़ते हैं, ये फटाफट लिखो। Let's talk about the third method. Third method is called as, it's more of a hidden trial method. इस केस में क्या होता है, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे देंगे और एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से आपको हिडन ट्राई करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ अज्यूम कर लो, जैसे अज्यूम कर लिया फर्स्ट ऑर्डर है, अब उसके एक्सप्रेशन के अंदर डेटा फिट करना पड़ेगा, राइट, एंड डेटा फिट करके अगर आपका जो रेट कांस्टेंट है के, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, दैट मींस वो अजम्पशन सही था। थोड़ा और समझाता हूँ डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हिडन ट्रायल मेथड कैसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शन है A goes to B, और पूछा जा रहा है इसका ऑर्डर कितना होगा, गिवन A का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ और टाइम डेटा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, लेट मी चूज सम वैल्यूज। ये टाइम मिनट्स में मेंशन कर रहा हूँ, एंड ये कॉन्सेंट्रेशन इन मोलर में मेंशन कर रहा हूँ। टाइम इज 0 मिनट, द कॉन्सेंट्रेशन इज 2.08, टाइम इज 135 मिनट, कॉन्सेंट्रेशन इज 1.91।
339 मिनट्स, बहुत ही अच्छे वैल्यूज नहीं है बट एग्जाम में अच्छे वैल्यूज आ जाएंगे। इट इज गोइंग टू बी 1.68, टाइम है 683 मिनट्स एंड कंसंट्रेशन है 1.35। इस तरीके से आपको डेटा दे दिया एंड बोला जा रहा है नाउ फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, फाइंड द क्या करोगे आप, अज्यूम करोगे हिडन ट्रायल मेथड है तो आप पहले अज्यूम कर लोगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब दिस शुड फिट द फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। राइट, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है? ln a upon a minus x is equal to kt। राइट, तो अब ऐसा करते हैं, ये दोनों का डेटा पॉइंट लेते हैं दिस एंड दिस और इन पर फर्स्ट ऑर्डर का रेट लगाते हैं और उससे k का वैल्यू निकालते हैं। राइट, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 upon t into ln c naught by ct a naught by at। t का वैल्यू डाला 135, a naught एंड 80 डाला, उससे मुझे k का एक वैल्यू मिल गया दूसरे सेट। राइट, फिर आप दूसरा सेट ले लो। यू कैन टेक आइदर यू कैन टेक दिस एंड दिस और यू कैन टेक दिस एंड दिस एज वेल, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स टेक दिस एंड दिस, तो अब इधर k कितना हो जाएगा? अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ln a naught by at एंड यहां से वैल्यू निकालेंगे। राइट, जनरली इतने चेक में काम चल जाता है, एक थर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वैल्यूज दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब अपना असम्पशन सही था, ये डेटा इस इक्वेशन को फिट कर रहा है। ठीक है, व्हिच मींस वी अज्यूम द राइट रेट लॉ। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज अ हिडन ट्रायल मेथड। नाउ इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना, जनरली अगर जीरो ऑर्डर आंसर होना होगा तो उसमें जो टाइम का इंटरवल होगा ना वो इवनली स्प्रेड होगा, 0, 20, 40, 60। जनरली अगर मैंने जो ऑब्जर्व करा है क्वेश्चंस में, बुक्स वगैरह में जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आंसर जीरो ऑर्डर आने वाला होता है राइट, तो जो टाइम का स्प्रेड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में कैसा होता है, रेट इज यूनिफॉर्म, बराबर मोल्स बराबर टाइम में खत्म होते जाते हैं। 20 मिनट में 5 मोल खत्म हो जाएंगे, फिर 20 मिनट में 5 मोल खत्म हो जाएंगे, इस तरीके से चलता है। तो जनरली अगर आंसर जीरो ऑर्डर होना होगा तो यहाँ पर जनरली स्पीकिंग, आज कोई लॉ नहीं है, इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट टाइम विल बी गिवन इन यूनिफॉर्म इंटरवल्स फॉर अ इफ द रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये चीज क्लियर है? इट जस्ट सेव्स टाइम समटाइम्स। क्लियर? So this is a hidden trial method. Right? एक लास्ट बस पढ़ लेते हैं, which is called as initial rate method. ये वाला लिख लिया मैंने, एक बार लिख लो, फटाफट अगर लिखना है तो इसको, सिंपल सा है। फिर लास्ट वाला एक बार लिख लेना, initial rate method। इस केस में ऐसे आपने ऑब्जर्व करा, जो पिछला वाला मेथड था इसमें कैसा था, एक ही सिंगल एक्सपेरिमेंट है जिसका टाइम निकले जा रहा है और हम डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस वाले मेथड में क्या होगा, हम मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करेंगे और हर एक्सपेरिमेंट की इनिशियल रेट ऑब्जर्व करेंगे। पिछले वाले में कैसा था, एक एक्सपेरिमेंट था और ओवर टाइम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करेंगे और सबका इनिशियल रेट ऑब्जर्व करेंगे। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, इट इज बेटर एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जांपल इटसेल्फ। लेट्स से आपके पास में एक रिएक्शन है 2NO plus Cl2 gives 2NOCl, right, and you have to find the order of this reaction, right? और इसमें डेटा कैसे दिया हुआ है, इसमें डेटा दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट 1
initial concentration of NO and initial concentration of Cl2, and you will be given initial rate, right? HOCl. NaCl. NOCl. NO. एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसमें लिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन NO का लिया है 0.01 एंड Cl2 का लिया है 0.01 एंड रेट बोला जा रहा है इट इज 1.2 into 10 raised to the power of -4, राइट? फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इस बार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा चेंज करा, NO का कांस्टेंट रहने दिया, Cl2 का डबल करा और रेट हो गया 2.4 into 10 raised to the power of -4. First order with respect to Cl. Yeah, first order. राइट? थर्ड एक्सपेरिमेंट करा जिसमें Cl2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहने दिया, इस बार NO का डबल करा और रेट हो गया 9.6 into 10 raised to the power of -4, राइट? आपको पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, राइट? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, उसका जनरल एक्सप्रेशन अपन लिख सकते हैं। जनरल एक्सप्रेशन कैसा होगा, रेट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू K इनटू NO का कोएफिशिएंट लेट्स से X एंड Cl2 का कोएफिशिएंट Y। अपने को X और Y निकालना है। ये चीज समझ में आया इस डेटा को यूज करके। अब ऑब्जर्व करना आप, एक्सपेरिमेंट 1 के हिसाब से क्या हो रहा है, द रेट 1.2 into 10 raised to the power of -4 is equal to K into NO का कितना concentration गिवन है 0.01 raised to the power of X into initial concentration कितना गिवन है Cl2 का 0.01 raised to the power of Y, राइट? दूसरे डेटा के हिसाब से 2.4 into 10 raised to the power of -4 is equal to K into 0.01 raised to the power of X into 0.02 raised to the power of Y, राइट? दोनों को डिवाइड करो, y का रिजल्ट मिल गया, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ये डबल होने से ये भी डबल हो गया, मतलब y का पावर y का वैल्यू 1 रहा होगा, राइट? थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है 9.6 into 10 raised to the power of -4 is equal to K into 0.02 raised to the power of X into 0.02 raised to the power of Y। इस बार इन दोनों को डिवाइड करो, राइट? तो क्या हो रहा है, डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है, ये तो कट जाएगा, Y वाला तो कट जाएगा ना, ये वाला पार्ट इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये Y वाला तो कट जाएगा, इसको डबल कर रहा हूं और उससे ये चीज 4 टाइम्स हो रही है, तो आपको फिर डेटा उतना और मिलेगा, अकॉर्डिंगली आपको डेटा मिलेगा। आप ठीक है, ये समझ में आया? तो होगा ना, देखो यहाँ इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करने से क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/4, राइट? और राइट हैंड साइड पे ये K कैंसिल आउट हो गया, ये Y वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये कैसा बन जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 0.02 रेज़ टू द पावर ऑफ x, मतलब 1/2 रेज़ टू द पावर ऑफ x, इससे x का वैल्यू कितना आ गया 2, y1 आ गया, x2 आ गया, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता पड़ गया, कितना हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये समझ में आया? सो दिस इज another simple method for finding the